السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 7 ستمبر ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات. لال قلعہ میں تقریب کے دوران ہیرو جوڑا کلش چوری، اوم برلا کی موجودگی میں واردات. آر جے ڈی کے 10 سوال، این ڈی اے پر تابڑتوڑ حملہ، بی جے پی نے لالو دوڑ کو گھسیٹا. دہلی کی بارش نے نڈا کی ڈنر پارٹی بہا دی. نائب صدر الیکشن سے پہلے بادلوں کا کھیل. بہار میں پولیس پر گاؤں والوں کا دھاوا، تھانے دار سمیت 4 اہلکار زخمی. ممبئی کو دھماکوں سے اڑانے کی دھمکی، بہار کا ملزم نوئیڈا سے دھر لیا گیا. کینیڈا حکومت کی تسلیم، خالصتانی دہشت گردوں کو فنڈ کا سرکاری انکشاف. اسرائیلی بمباری میں غزہ کی فلک بوس عمارت زمیں بوس، 27 فلسطینی شہید. عرب لیگ کا 2 ٹوک اعلان، امن کے لیے اسرائیلی جارحیت ختم کرنا ضروری. پاواگڑھ روپ ہوئے حادثہ، تار ٹوٹنے سے 6 یاتری لقمہ اجل. کھلاڑیوں اور کوچز کو 6 ماہ کی چھٹی، 2036 اولمپکس کی بڑی تیاری. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے اندر ایک چونکا دینے والی سٹوری سامنے آئی ہے. ایک جین مذہبی انوشٹھان کے دوران جب لوگ مذہبی رسومات میں مشغول تھے، تبھی چوروں نے شاطرانہ انداز میں لاکھوں روپے قیمت کا وہ قیمتی کلش غائب کر دیا جو ہیرو اور سونے کی نفاست سے مزین تھا. رپورٹ کے مطابق اس کلش میں 760 گرام سونا اور 150 گرام ہیرے اور مانکینے اور پنے جڑے ہوئے تھے. واقعہ اس وقت ہوا جب ارد گرد کے لوگ تقریب اور استقبال میں مصروف تھے. یعنی وہ لمحہ چوروں کے لیے موضوع ثابت ہوا جب خبر یہ بھی ہے کہ اس تقریب میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا بھی موجود تھے اور یہ جین انوشٹھان 15 اگست پارک میں جاری تھا جو 9 ستمبر تک چلنے والا تھا. وقوع کے اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری تفتیش شروع کر دی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں مشتبہ سرگرمیاں قید ہیں اور پولیس نے مبینہ ملزم کی شناخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جلد گرفتار کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. معاملے میں بھارتی نیائے سنہتا یعنی کہ BNS 2023 دفعہ 302 کے تحت FIR درج کرائی گئی ہے. خاص بات یہ ہے کہ لال قلعہ ایک حساس تاریخی مقام ہے جس کی حفاظت کے لیے CISF اہلکار تعینات رہتے ہیں اور وہاں CCTV کیمروں کا جال بچھا ہوا ہے. اس کے باوجود اس بڑے واقعے نے سیکورٹی انتظامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کس قدر اتنی بڑی واردات ممکن ہوئی اور ذمہ داروں کو جلد از جلد صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا یا نہیں. بہار کی سیاست میں تیز گرما گرمی بحث جاری ہے. راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD نے NDA کی ریاستی حکومت سے پسماندگی کے بارے میں 10 سوالات اٹھائے. RJD کے لیڈر تیجسوی یادو نے الزام لگایا کہ حکومت معیاری تعلیم اور روزگار کے بجائے نفرت، تشدد اور فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دے رہی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ ڈبل انجن حکومت نے 2 نسلوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. RJD نے عوام سے اپیل کی ہے کہ انتخاب سے پہلے امیدواروں سے اس 10 بنیادی سوالات کے بارے میں ضرور بات چیت کریں گے اور جواب طلب کریں گے کیونکہ بہار اب بھی ملک کی سب سے پسماندہ ریاست ہے. خواتین غیر محفوظ کیوں؟ صحت کا نظام کیوں ناکام ہے؟ جرائم اور بدعنوانی اتنا عروج پر کیوں ہے؟ بے روزگاری کی وجوہات کیا ہے؟ ہجرت کیوں ہو رہی ہے؟ اسکولوں کی عمارتیں کیوں نہیں بنی؟ نئی صنعت کیوں نہیں آئینی وغیرہ. تیجسوی نے پٹنہ یونیورسٹی کی حالت زار کی طرف اشارہ کیا اور کہا
कहा कि कई साल से इस तरह पड़ा हुआ है और बंद हो चुके हैं, इस तरह के कोर्सेस बंद हो चुके हैं। उनके बयान के बाद फौरन बीजेपी ने सख्त अंदाज में जवाबी वार किया। पार्टी तर्जमान नीरज कुमार ने आरजेडी के दौरे हुकूमत की जंगल राज वाली तनकीद दोहराई और कहा कि करप्शन और बदअनवानी ही बिहार को पीछे छोड़ने की असल वजह थी, जबकि मौजूदा दौर में अमन व अमान बेहतर हुआ है और तरक्की के दरवाजे खुल रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिहाइश पर 6 सितंबर को होने वाली खुसूसी डिनर दावत मंसूख कर दी गई। बताया गया कि दिल्ली में शदीद बारिश और सैलाब ज़दा हालत की वजह से यह तकरीब रोक दी गई। हालांकि यह आशाइया एनडीए के अरकान पार्लिमान के लिए मुनक्किद किया जाना था ताकि नायब सदर के इंतखाबात से कबल एक ब्रीफिंग और तरतीबी नशिस्त रखी जा सके। नोट कीजिए कि नायब सदर का इंतखाब 9 सितंबर को होना तय है, लिहाजा सियासी तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने अरकान पार्लिमान को 6 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने की हिदायत दी रखी थी। अगरचे जेपी नड्डा का यह डिनर अब नहीं होगा, मगर जमात की तरफ से पीएम मोदी ने 8 सितंबर को अपनी रिहाइशगाह पर सभी अरकान को आशाइया की दावत दी है, इसलिए कि अरकान पार्लिमान के लिए वर्कशॉप और तरतीबी नशिस्तें भी रखी गई है और वो 7 सितंबर तक अपने वर्कशॉप में शरीक रहेंगे। सियासत के इस घमासान मामले में हर लम्हा अहमियत रखता है और नायब सदर के इंतखाब में दोनों तरफ से उम्मीदवारों की भरपूर तैयारी जारी व सारी है। बिहार के वैशाली जिला से एक अजीब गरीब मगर तशवीशनाक वाकये की खबर है। वहां एक मामूली तनाजा यानी आइसक्रीम के पैसा न देने पर कशीदगी में तब्दील हो गया और दोनों फरीकों के दरमियान शदीद झड़पें हो गई। महुआ थाना के पुलिस के मुताबिक 3 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि मुश्तइल अफराद ने पुलिस टीम पर हमला भी कर दिया, जिसके नतीजे में एक थानादार और 3 दीगर पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। दौरान हंगामा भीड़ ने एक पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और आर्जी तौर पर एक राइफल भी छीन ली गई। बाद अज़ा इस बाजियाब करा लिया गया और छोटे से झगड़े ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी और इलाके में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। नोएडा पुलिस ने एक अहम क्रैकडाउन में मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर धमाके की धमकी देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसे मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। नोएडा में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अश्विन कुमार सुपरा बताया जा रहा है। इसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने बम से मुतालिक धमकी देने के इल्जाम में शनाख्त किया है। मुलजिम ने व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को धमकी आमेज पैगाम भेजा था और शहर में बड़े पैमाने पर बम धमाके किए जाएंगे, जिसकी इत्तला मिलते ही शहरों की पुलिस एक्टिव हो गई। फोर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी। नोएडा पुलिस ने मुलजिम का फोन और सिम जब्त कर लिए हैं और उसे मुंबई ले जाया जा रहा है ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। पुलिस का कहना है कि मुलजिम 50 साल का है, उसका ताल्लुक पटना से है, जबकि वो करीबी सोसाइटी में रह रहा था और एक शख्स जिसके नाम सिम है जो इस्तेमाल करता था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वह टीम को इस शानदार गिरफ्तारी पर इनाम भी देने का ऐलान किया गया है। बिरोनी महाज पर एक बड़ी रिपोर्ट ने कनाडा हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली है। कनाडा की हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीमों की फंड पर एक जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खालिस्तानी इंतहा पसंद तंजीमों समेत कई ग्रुपों को कनाडा से फंड मिलने का खदशा जाहिर किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इंतहा पसंद गिरोह सियासी तौर से मुतासिरा पुरतशद्दुद सरगर्मियों के लिए रकम इकट्ठा कर रहे हैं और ये फंड डोनेशन, मंशियात की स्मगलिंग, गाड़ी चोरी और MPOs के तवस्सुत से भी हो सकती है। इत्तलात के मुताबिक बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग के जरिए का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है और ये पहला वाकया नहीं जब भारत ने कनाडा में खालिस्तानी अनासर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया है।
मशरक़ वस्ता से एक अफसोसनाक खबर। इसराइल फौज ने गजा शहर में एक बिल्डिंग और बाला इमारत को निशाने पर बना लिया। तकरीबन 27 अफराद हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। फौज ने बताया कि हमले से पहले आरजी इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी गई थी और इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमास ने इमारत को निगरानी और अस्करी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। फ़लस्तीनी ज़राए और सेहत के हुक्काम ने कहा है कि शहरी हलाकतें हुई हैं और हमलों की बाइस लाखों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर है। शहर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। रिपोर्टों के मुताबिक गजा की वज़ारत सेहत ने एक बड़े आदाद शुमार का जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी इस तनाज़े में हलाक हुए हैं और मरने वालों में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। इसी मुनासिबत से अरब लीग ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में पायदार और पुरअमन बकाए बाहमी का वाहिद रास्ता एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से होकर गुजरता है। मिस्री और सऊदी अरब के पेश करदा करारदाद को अल अरब लीग ने मंजूर किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि काबिज रियासत की जानिब से जारी मुजरिमाना तर्ज अमल को रोकना नागुज़ीर है। करारदाद में 2002 के अरब अमन इंस्टीट्यूट और 2 रियासती हल को बतौर बुनियाद करार देने की भी सिफारिश की गई है। यह करारदाद एक ऐसे वक्त में मंजूर हुई जब गजा के इर्द गिर्द फौजी कार्रवाइयां तेज हो चुकी है। अरब ममालिक ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में इस्तेहकाम तभी मुमकिन है जब इंसाफ और बैन अक़वामी कानून के पासदारी होगी और कब्जे की पॉलिसी को रोका जाएगा। गुजरात के मशहूर पावागढ़ हिल मंदिर के करीब एक अलमनाक हादसा पेश हुआ। एक कार्गो रूप वे का तार अचानक टूट गया जिसके नतीजे में कम से कम 6 मजदूर हलाक हो गए। इमदादी टीमें, पुलिस और फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर फौरी तौर पर पहुंच गए और लाशों को निकाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। हुक्काम ने बताया कि हादसा मौसम खराब के बाइस हुआ। हालांकि आमतौर पर रूप वे को बंद कर दिया जाता है मगर एक कार्गो रूप वे जो सामान के लिए इस्तेमाल होता है काम कर रहा था। इसी में फनी खराबी ने यह अलमिया जन्म दिया। वाक़ये के बाद रियासती हुकूमत ने तहकीकाती टीम कायम कर दी ताकि जांच की जा सके, हिफाजती उसूल और तकनीकी खामियों का तफसीली मुआयना किया जा सके। वज़ीर आला की तरफ से गमज़दा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया गया है। अंदर से वाईफाई कनेक्ट करवा दो। मोआ भी आता अंदर आहूं आ दो आप मूवी वाली खेलों के महाज पर भारत की तरफ से खिलाड़ियों और उनके मुआविन अमले के हक में एक खुश आइन फैसला सामने आया है। अब बैन अक़वामी मुकाबलों और ओलंपिक्स की तैयारी करने वाले खिलाड़ी अपने कोचेस, स्पिनिंग और पार्टनर्स और दीगर मुआविन अमले के साथ ज्यादा से ज्यादा 180 दिन तक खुसूसी आराम यानी छुट्टी हासिल कर सकेंगे। ये सहूलत खास तौर पर उन इवेंट्स के लिए है जो अगले 1 साल के अंदर मुतवक्की हैं, जिससे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स। इस फैसले का मकसद खिलाड़ियों को मुसलसल तरतीब और मुआवनत फराहम करना ताकि वो बैन अक़वामी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समेत आला खिलाड़ियों की दरखास्त पर यह आरामदाह छुट्टी रेलवे ने मंजूर की है। रेलवे बोर्ड ने जोनल मैनेजर को हिदायत भी जारी कर दी है कि इस फैसले से कोचेज और मुआविन अमले बगैर किसी दबाव के खिलाड़ियों की दुनिया में और खिलाड़ियों के साथ मुंसलिक रहकर बेहतर तैयारी कर सकेंगे। फिक्र नजर की गुश्ता पेशकश में आदिल आलम, मलिक अंजुम, मोहम्मद वसीम अहमद, मोहम्मद शाहिद रहमानी, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद गुफरान साहिबान वगैरह ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथी से फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। शुक्रिया।